मैं डॉक्टर श्रीमती शिखा पहारे, सहायक प्राध्यापक वनस्पति शास्त्र, DPV कॉलेज, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। मैंने आज जो वीडियो लेक्चर के लिए टॉपिक लिया है वो है टेक्सस, जो कि MSc सेकंड सेमेस्टर पेपर 2 बायोलॉजी एंड डाइवर्सिटी ऑफ जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आता है। इसमें जो इंडेक्स है उसमें सबसे पहला इंट्रोडक्शन, सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ टेक्सस, हिस्ट्री ऑफ टेक्सस, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ टेक्सस, internal morphology of Texas, reproduction of Texas, gametophyte of Texas, embryogeny of Texas, seed of Texas, economic importance of Texas. इंट्रोडक्शन में मैंने लिया है पूरे जिम्नोस्पर्म के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, जिसमें पहला है ऑर्डर टेक्सेल्स, ये जो कि जिम्नोस्पर्म ग्रुप के अंतर्गत आता है। प्लांट्स आर नेकेड सीडेड, इनके जो प्लांट्स होते हैं उनमें सीड जो होता है वो नेकेड होता है, जिसमें कि फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता है। थर्ड है लिविंग मेंबर्स आर फाउंड इन कोल्डर रीजन ऑफ अर्थ। फोर्थ है प्लांट्स आर वुडी, एवरग्रीन, पेरिनियल ट्रीज और श्रब्स। फोर्थ है प्लांट्स बॉडी आर स्पोरोफाइट्स विच में बी डायोशियस और मोनोशियस। स्पोरोफाइट्स में भी प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। टेप रूट सिस्टम, स्टेम इरेक्ट, जनरली branched, leaves are dimorphic, they are foliage and scale leaves. Gymnosperm is xerophytic in nature due to presence of thick bark, thick cuticle, thick hypodermis, sunken stomata, transfusion tissue and scale leaves. Xylem composed of xylem parenchyma and xylem tracheids. Vessels are absent in gymnosperm except tunicum. Phloem composed of sieve cells and phloem parenchyma, but companion cells are absent. Heterosporous means two types of spore present in gymnosperm, haploid microspore and megaspore. Both type of spores are formed on a special leaf-like structure called sporophyll. They are microsporophyll and megasporophyll. Cones are compact-like structure and sporophyll are spirally arranged. Ovules are naked, orthotropous and unitegmic or bitegmic. Pollination by wind or anemophilous. Fertilization is by siphonogamous. Endosperm is formed before fertilization and always haploid. Embryo development is meroblastic, that is developed from a small part of zygote. Polyembryony, most members show polyembryony, that is development of more than one embryo, but only one survive. Cotyledons 2 in Cycas or many in Pinus. Cambium from secondary wood which is monozylic. Classification or systematic position of Taxus. Division Coniferophyta, class Taxopsida, order Taxels, family Taxaceae. History of Taxus. Engler and Prantl 1889 recognized only one species, Taxus baccata, in India, while Delmore and Jackson 1940 and Spohn 1965 included 9 species, that is Taxus baccata, Taxus brevifolia, Taxus canadensis, Taxus chinensis, Taxus cupidata, Taxus georgiana, Taxus globosa, Taxus media. Occurrence. Taxus is widely represented in North and South America, Europe, Philippines, Algeria, Morocco and India. In India, Taxus occur on both eastern and western Himalayas in Khasi and Naga hills, Assam, Manipur and Shimla. Morphology. It is evergreen tree, height of 9.2 meter with massive trunk. Stem is branched and covered with thin brown colored bark. Do not have dimorphic branches. The leaves are linear, small and 2 to 3 cm long and spirally arranged. Upper surface is dark green and lower surface is pale or red in color. The apex is sharply pointed because of accumulation of silica. These sharply pointed apex may cause death of catties eating these leaves. Each leaf is short, stalked. Scale leaves present on the fertile shoot or opposite decussate. Well developed tape root system present. The roots are deep feeders and highly branched. Anatomy of root.
Root is much branched. They have distinct root cap and root hair. Internal structure of root is similar to the pinus. Outermost, there are three parts in the root. First है primary structure, secondary growth in root and xylem. First है primary structure, epiblema. The root is much branched. They have a distinct root cap and root hair. Outermost single layer is called epidermis or epiblema. It is unicellular hair present in root hair. Just below the epidermis, several layers of parenchymatous cell with narrow intercellular space is called cortex. Cortex is just below the endodermis. It is multilayered and thickening present in radial walls. Pericycle, the endodermis followed by multilayered pericycle composed of parenchymatous cell. The pericycle contains marine resin canal. Vascular tissue, the stele is diarch and exarch. Secondary growth in root. सेकेंडरी ग्रोथ रूट का जो होता है टेक्सस का, वो सिर्फ पाइनस के समान ही होता है और इनमें जो होता है वो एक्टिविटी कैम्बियम रिंग की एक्टिविटी के कारण इनमें सेकेंडरी ग्रोथ होता है, जिसमें यह कैम्बियम बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम और अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनाती है और इस प्रकार वेस्कुलर कैम्बियम की सक्रियता के कारण सेकेंडरी टिश्यू का निर्माण होता है। रूट की पेरिफेरल टिश्यू यह एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाती है जिसे हम पेरिडर्म कहते हैं। यह पेरिडर्म कॉर कैम्बियम की एक्टिविटी से बनती है और फेलोजन यह पेरिसाइकिल के आउटर लेयर से बनती है। कॉर कैम्बियम बाहर की तरफ फेलम और अंदर की तरफ फेलोडर्म बनाती है। दूसरा है एनाटॉमी ऑफ स्टेम। एनाटॉमी ऑफ स्टेम को हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है प्राइमरी स्ट्रक्चर, दूसरा है सेकेंडरी ग्रोथ और तीसरा है सेकेंडरी जाइलम। पहला है प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लेते हैं एपिडर्मिस, जो कि सिंगल लेयर होती है और पेरेन्काइमेटस सेल्स की बनी होती है। एपिडर्मिस के ऊपर थिक क्यूटिकल की एक आउटर वॉल पाई जाती है। एपिडर्मिस के ठीक नीचे कॉर्टेक्स होता है जो कि मल्टीलेयर्ड होता है और यह भी पेरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है, जिनमें कि कुछ सेल्स में टैनिन जो है वो भरा होता है। कॉर्टेक्स के ठीक नीचे एंडोडर्मिस होता है। यह 2 से 3 लेयर होता है और इसके साथ ही पेरिसाइकिल होता है जो कि स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है। पेरिसाइकिल के ठीक नीचे वेस्कुलर बंडल पाया जाता है जो कि एक रिंग में अरेंज होते हैं और कंजॉइंट, कोलेट्रल, ओपन और एंडाज प्रकार के होते हैं। प्रोटोजाइलम या ट्रैकिड्स जिनमें स्पाइरल थिकनिंग या स्पाइरल ट्रैकिड्स का बना होता है। मेटाजाइलम, इनमें ट्रैकिड्स में यूनिसिरिएट बॉर्डेड पिट्स पाए जाते हैं। जाइलम पेरेन्काइमा इनमें अनुपस्थित होता है। फ्लोएम में फ्लोरम पेरेन्काइमा और सीव एलिमेंट्स होते हैं और कंपेनियन सेल इनमें एब्सेंट होते हैं। सबसे बीच में पिथ पाया जाता है जो कि पेरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है। दूसरा भाग है सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम। सेकेंडरी ग्रोथ जो है स्टेम का, यह कैम्बियम की एक्टिविटी के कारण होता है। यह कैम्बियम जाइलम और फ्लोएम के बीच में पाया जाता है। कैम्बियम रिंग जो होती है यह अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है। प्राइमरी जाइलम यह स्टेम के ग्रिथ को बढ़ाती है और इस प्रकार लगातार सेकेंडरी ग्रोथ के कारण बाहरी जो टिश्यू हैं वह नष्ट होते जाते हैं। तीसरा है सेकेंडरी जाइलम। टेक्सस का ओड यह समानतः सेकेंडरी जाइलम जो कि पिक्नोजाइलिक प्रकार का होता है इसका बना होता है। पिक्नोजाइलिक जो होता है जिसमें वुड जो होता है वो कॉम्पैक्ट होता है और हार्ड होता है, जिसमें स्पष्ट एनुअल रिंग्स दिखाई देते हैं। सेकेंडरी जाइलम के ट्रैकिड्स में यूनिसेरिएट बॉर्डेड पिट्स रेडियल वॉल में पाए जाते हैं। टेक्सस बेकाटा में यह बाइसिनेट होता है। फेलोजन यह ओल्डर स्टेम में विकसित होता है और ट्रांसस्टिलर सेकेंडरी ग्रोथ दर्शाता है। मेडुलरी रेस यह सिंपल और यूनिसेरिएट होती है। इसके बाद हम आते हैं एनाटॉमी ऑफ लीफ। एनाटॉमी ऑफ लीफ में लीफ जो होती है वो डॉर्सीवेंट्रल प्रकार की होती है और जीरोफिटिक फीचर शो करती है। इसमें भी सबसे पहला भाग जो होता है वो होता है एपिडर्मिस,
जो कि दो भागों में बटा होता है, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस। और ये जो होता है ये सिंगल लेयर होता है जो कि पैरेन्काइमटस सेल्स का बना होता है। अपर एपिडर्मिस ये स्मूथ होता है और थिक क्यूटिकल से ढका रहता है। लोअर एपिडर्मिस यह थिन क्यूटिकल से ढकी रहती है और लोअर एपिडर्मिस में ही संकन स्टोमेटा पाए जाते हैं। दूसरा भाग होता है मेसोफिल। मेसोफिल जो होता है यह पेलिसेड टिश्यू और स्पॉन्जी टिश्यू में बटा होता है। पेलिसेड टिश्यू में यह पेलिटेस टिश्यू जो होता है ये कॉम्पैक्टली अरेंज होता है और पैरेन्काइमटस सेल्स का बना होता है और इनमें कुछ मात्रा में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। स्पॉन्जी पैरेन्काइमा जो होते हैं ये लूजली अरेंज होते हैं और ये भी पैरेन्काइमटस सेल के बने होते हैं और इनके बीच बीच में इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं। मेसोफिल के नीचे एंडोडर्मिस होता है। यह जो एंडोडर्मिस होता है यह वेस्कुलर बंडल को पूरा घेरे रहता है और इनकी जो सेल का शेप होता है वो बैरल शेप का होता है और इनकी रेडियल वायर में कैस्पेरियन थिकनिंग्स पाई जाती है। वेस्कुलर बंडल जो होता है यह मिड रिब रीजन में पाया जाता है। इनमें फ्लोएम जो होता है टुवर्ड लोअर साइड में होता है और जाइलम जो होता है टुवर्ड अपर साइड में होता है। ट्रांसफ्यूजन टिश्यू या वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ पाए जाते हैं। इन टिश्यू में ट्रैकिड्स और एल्ब्यूमिनस ग्रुप्स की सेल्स पाई जाती हैं। इनमें कुछ जीरोफिटिक कैरेक्टर पाया जाता है जैसे कि थिक क्यूटिकल, संकन स्टोमेटा, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू, नैरो लेमाइना, मेसोफिल टिश्यू का दो भागों में विभाजित होना, पेलिसेड टिश्यू और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ये सब जो है टेक्सस के जीरोफिटिक नेचर को बताते हैं। इसके बाद जो है वो है हमारा रिप्रोडक्शन, प्रजनन। रिप्रोडक्शन में टेक्सस में जो यूजुअली टेक्सस का जो प्लांट होता है ये यूजुअली डायोशियस होता है, यानी कि मेल और फीमेल कोन एक ही प्लांट में पाए जाते हैं। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ये जो होता है ये फरवरी से मार्च के बीच में इनमें रिप्रोडक्शन होता है। इनमें प्रायः सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पाया जाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनमें अनुपस्थित होता है। सबसे पहले देखते हैं हम मेल फ्लावर या मेल कोन। मेल कोन जो होता है ये स्टॉक्ड होता है, सब ग्लोब्यूल्स होता है, येलो कलर का होता है और फोलिएज लीव्स के एक्सिस में यह विकसित होता है। इनमें 6 से 14 तक माइक्रोस्पोरोफिल होते हैं जो कि कोन में अरेंज होते हैं। ये माइक्रोस्पोरोफिल जो होते हैं ये पेल्टेट स्ट्रक्चर के होते हैं जिनमें 6 से 8 पेंडेंट माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं। इनमें बहुत से माइक्रोस्पोर जो होते हैं ये माइक्रोस्पोरेंजिया में बहुत से माइक्रोस्पोर बनते हैं जो कि पीले रंग के होते हैं। फिर है डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरियम जो होता है टेक्सस में ये यू स्पोरेंजियट टाइप का होता है। जो माइक्रोस्पोरेंजियम है यह जो है माइक्रोस्पोर के हाइपोडर्मल सेल से विकसित होती डेवलप होती है और इनमें सबसे पहले जो सेल बनती है उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियल इनिशियल सेल, जिनमें कि पेरिकाइनल डिवीजन होता है, जिसके कारण जो सेल्स बनती है उसको कहते हैं प्राइमरी वॉल सेल और दूसरा जो अंदर की तरफ बनता है उसको बोलते हैं प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। प्राइमरी वॉल सेल में फिर डिवीजन होता है जो कि पेरिकाइनल और एंटीक्लाइनल दोनों होता है, जिससे 2 लेयर स्पोरेंजियम वॉल बनती है। प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल में रिवीजन जो है लगातार होता है, जिसके कारण कि एक अंदर की तरफ मास का वो बनता है, ग्रुप बनता है, जिसे कहते हैं हम स्पोरोजेनस टिश्यू। आउटर लेयर ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू जो होती है उसको हम कहते हैं टेपिटम, जो कि एक न्यूट्रिटिव लेयर का काम करती है। प्रत्येक माइक्रोस्पोर जो होता है ये मदर सेल की तरह काम करता है और जो होता है बाद में इस माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाता है। माइक्रोस्पोर यह जो है 2 वॉल के द्वारा घिरे रहती है, जिसे हम कहते हैं बाहर की तरफ कहते हैं एक्साइन और अंदर की तरफ होती है इंटाइन। अब उसके बाद देखते हैं हम टेक्सस का फीमेल फ्लावर या फीमेल कोन। फीमेल कोन जो होता है यह स्ट्रोबलाई के रूप में होता है और ये थोड़ा रिड्यूस प्रकार का होता है और ये भी लीव्स के एक्सिस से डेवलप होता है और इनमें बहुत से इनको कवरिंग लेयर जो लीव्स जो होती है उनको प्रोटेक्ट करती है। प्रत्येक जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ये शॉर्ट होता है जो कि प्राइमरी एक्सिस में ब्रेड्स के द्वारा लगा रहता है। अकॉर्डिंग टू डुपलर 1920 उन्होंने बताया कि जो वेजिटेटिव ब्रांच होती है वो लिमिटेड ग्रोथ की होती है और इन्हीं में ये फीमेल कोन जो है बनते हैं। फीमेल फ्लावर के बाद हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोरेंजियम एंड ओव्यूल।
टेक्सास में मेगास्पोरेंजियम का विकास यह यूस्पोरेंजिएट प्रकार का होता है। इसमें भी एक या एक से अधिक जो सुपरफिशियल इनिशियल सेल है डिवाइड होकर पैरेन्काइमेटस सेल का एक मास बनाती हैं, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के बेस से एक एन्युलर आउटग्रोथ बनती है जो कि एक कवरिंग बनाती है, जिसे हम इंटेग्यूमेंट कहते हैं, जो कि पूरे न्यूक्लियस को घेरे रहती है। इसके ऊपर एक पोर या छिद्र पाया जाता है जिसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं। इंटेग्यूमेंट जो होता है ये पूरा फ्री रहता है, पर बेस में ये एक न्यूक्लियस से जुड़ा रहता है जिसे हम चेलेजल कहते हैं। इसमें एक और स्ट्रक्चर जो हमें देखने को मिलता है रिंग लाइक होती है, जो कि इंटेग्यूमेंट के बेस से निकलती है, जो कि पूरे ओव्यूल को घेरे रहती है, जिसे हम एरिल कहते हैं। न्यूक्लियस की जो हाइपोडर्मल सेल होती है यह साइज में बड़ी हो जाती है और आर्कीस्पोरियस सेल की तरह कार्य करती है। इनमें पेरिकाइनल डिवीज़न होता है, जिससे अपर पैराइटल सेल और लोअर सुपर स्पोरोजिनस सेल बनती है। पैराइटल सेल में फिर से पेरिकाइनल डिवीज़न होने से स्पोरोजिनस सेल न्यूक्लियस से के अंदर एक स्पोरोजिनस सेल मेगास्पोर मदर सेल की तरह कार्य करती है। इसे हम जिसमें अब मियोटिक डिवीज़न होने से 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनते हैं। इनमें से 3 मेगास्पोर जो होते हैं डीजनरेट हो जाते हैं और केवल 1 मेगास्पोर जो होता है वो फंक्शनल होता है। इसके बाद देखेंगे हम ओव्यूल का स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। टेक्सास में ओव्यूल जो होता है उसका वो ऑर्थोट्रोपस प्रकार का होता है। इसमें निम्न भाग होते हैं। सबसे पहला होता है न्यूक्लियस। यह जो होता है सब थिक होता है और प्रोटेक्टिव लेयर होता है, जो कि पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है। दूसरा भाग होता है इंटेग्यूमेंट। यह जो होता है थिक होता है और प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है, जो कि पूरे न्यूक्लियस के चारों तरफ होता है। जो इंटेग्यूमेंट होता है यह 3 लेयर में भी विभाजित होता है, आउटर, इनर और मिडिल। आउटर एंड इनर लेयर जो होता है वो फ्लैशी होता है और मिडिल लेयर जो होता है वो स्टोनी होता है। इसके बाद आता है माइक्रोपाइल। यह स्मॉल नैरो अपर्चर होता है, जो कि ओव्यूल के सबसे ऊपरी भाग में पाया जाता है, जो कि इंटेग्यूमेंट के द्वारा बना होता है। इसके बाद होता है एरिल। एरिल जो होता है वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि पूरे ओव्यूल को कवर किए होता है। एरिल जो होता है ग्रीन होता है, परंतु मैच्योर होने के बाद ये रेड और जूसी हो जाता है। सबसे लास्ट में होता है वेस्कुलर सिस्टम। यह वेस्कुलर सिस्टम इंटेग्यूमेंट से सप्लाइड होता है और पूरे नीचे तक ओव्यूल तक जाता है और उसके बाद पूरे भाग को वेस्कुलर स्टेंट जो है वो भोजन सप्लाई करता है। गैमेटोफाइट। टेक्सास में 2 प्रकार के स्पोर्स होते हैं जो हेट्रोस्पोरस होते हैं। पहला स्पोर होता है माइक्रोस्पोर और दूसरा होता है मेगास्पोर। ये दोनों स्पोर जो होते हैं हैप्लॉइड होते हैं और गैमेटोफिटिक स्टेज के फर्स्ट सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। अब पहला है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। माइक्रोस्पोर या मेल गैमेटोफाइट का पहला चरण होता है, यह यूनिन्यूक्लिएट होता है, यूनी अपर्चर होता है और स्फेरिकल स्ट्रक्चर में होता है। इसमें बाहर की वॉल जो होती है वो एक्साइन होती है और थिक होती है और अंदर की वॉल जो होती है वो इंटाइन होती है। माइक्रोस्पोर्स ये हवा के द्वारा उड़कर माइक्रोपाइल तक आते हैं, जहां ये पॉलिनेशन ड्रॉप से घिर जाते हैं। माइक्रोस्पोर का न्यूक्लियस यह डिवाइड होकर 2 प्रकार की सेल बनाता है। पहली सेल को हम कहते हैं ट्यूब सेल और दूसरी सेल होती है वो है जनरेटिव सेल। टेक्सास में प्रोथेलियल सेल नहीं बनती है। इसके बाद माइक्रोस्कोप पे एक्साइन जो है वो फट जाती है और इंटाइन जो है एक ट्यूब बनाती है जिसे हम पोलन ट्यूब कहते हैं। अब यह पोलन न्यूक्लियस इस पोलन ट्यूब में आ जाता है और जनरेटिव सेल डिवाइड होकर स्टॉक सेल और बॉडी सेल बनाती है। बॉडी सेल डिवाइड होकर 2 अनइक्वल मेल गैमेट्स बनाती है और ये सभी जो है पोनल ट्यूब न्यूक्लियस को पेनिट्रेट करके आर्कीगोनिया की नेक तक पहुंचते हैं और इस अवस्था में पोलन ट्यूब में ट्यूब न्यूक्लियस, स्टॉक न्यूक्लियस और 2 मेल न्यूक्लिया रहते हैं। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। मेगास्पोर या फीमेल गैमेटोफाइट का मदर सेल होता है, जो कि न्यूक्लियस के पैरेन्काइमेटस टिश्यू में धंसा रहता है। यह साइज में इंक्रीज होकर डिवाइड होकर 128 प्रकार की सेल बनाता है, जो कि टेक्सास बेकाटा में होता है। अब मेगास्पोर में
सेंट्रल वैक्यूल डेवलप होता है जिसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म की एक थिन लेयर बन जाती है। इसके बाद जो स्टेज होती है उसके बाद सेंट्रीपिटल वॉल का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, जिसके फलस्वरूप इलोंगेटेड मल्टीन्यूक्लियर ट्यूब लाइक सेल बनती है जिसे हम एल्वुलाई कहते हैं। प्रत्येक एल्वुलाई डिवाइड होकर बहुत सी यूनिन्यूक्लियेट सेल बनाती है जिसे हम फीमेल प्रोथैलस कहते हैं या इसे एंडोस्पर्म कहते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट का अपेक्स या फ्लास्क शेप्ड हो जाता है जिसे हम टेंटपोल कहते हैं, जो बाद में डिसअपियर हो जाता है। डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनियम। फीमेल गैमेटोफाइट का सुपरफिशियल सेल यह आर्किगोनियल इनिशियल की तरह कार्य करने लगती है। इनमें फिर से डिवीज़न होने लगता है जिससे दो सेल बनती है। पहली सेल को कहते हैं प्राइमरी नेक सेल और दूसरे लोअर सेल को कहते हैं सेंट्रल सेल। प्राइमरी नेक सेल डिवाइड होकर 2 से 4 सेल का नेक बनाती है और सेंट्रल सेल साइज में बड़ी हो जाती है और डिवाइड होकर वेंटर कैनाल सेल और एग न्यूक्लियस बनाती है। बाद में वेंटर कैनाल सेल जो होती है वो डीजनरेट हो जाती है, जो कि टेक्सस में दिखाई नहीं देती है। सेंट्रल सेल या साइज में बढ़कर अपने चारों तरफ एक न्यूट्रिटिव लेयर बना लेती है जिसे हम आर्किगोनियल जैकेट कहते हैं, जो कि फूड का ट्रांसफ्यूजन एंडोस्पर्म से आर्किगोनिया तक करती है। पॉलिनेशन। टेक्सस में पॉलिनेशन जो है वो एनिमोफिलस प्रकार का होता है, जो माइक्रोस्पोर होते हैं हवा के द्वारा डिस्पर्स होकर ओव्यूल तक पहुंचते हैं। उसके बाद होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन यूजुअली टेक प्लेस 2 मंथ आफ्टर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के 2 महीने के बाद फर्टिलाइजेशन होता है। द टिप ऑफ द पोलन ट्यूब दैट ब्रस्ट एंड ऑल द 4 न्यूक्लियाई एंटर द आर्किगोनियम। द लार्ज मेल गैमेट यूनाइट विथ एग एंड फॉर्म जाइगोट। एम्ब्रियो डेवलपमेंट। फर्टिलाइजेशन के बाद जो डाइगोट बनता है, जाइगोट का न्यूक्लियस या फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न करके लगभग 32 न्यूक्लियाई बनाता है। इसके बाद इसमें वॉल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। इसके साथ पूरा स्ट्रक्चर सेलुलर हो जाता है जिसे हम प्रो एम्ब्रियो कहते हैं। प्रो एम्ब्रियो की टिप की कुछ सेल डेवलप होकर डाइकोटिलेडन एम्ब्रियो बनाती हैं और जो बाकी बची सेल हैं यह सस्पेंसर सेल में भिन्नित हो जाती हैं। यह सस्पेंसर सेल इलोंगेट होकर एम्ब्रियोनल सेल को पुश करती हैं फीमेल प्रोथैलस में भोजन प्राप्त करने के लिए। अंत में फुल्ली जो मैच्योर एम्ब्रियो में सीधा रेडिकल जो कि माइक्रोपाइल्क्यूल होता है यह प्लूम्यूल बनाता है और 2 कोटिलेडन के बीच होता है। केवल एक एम्ब्रियो मैच्योर होता है और जो ओव्यूल में सीड जो होता है वो नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। सीड। द जर्मिनेशन इन सीड इज एपिजियल, that is the cotyledons come above the soil by the elongation of hypocortical. During germination, the testa burst open by absorbing water and the radicle comes out from the micropyle. It enter into the soil and form primary tape root. Thereafter, the plumule emerges and form shoot system which bear spirally arranged foliage leaves. Economic importance of Texas. Texas baccata and some other species, the timber is oily and soft and used for making decorative urns, ternary, flower and pots. The aril is edible. The leaves also contain ephedrine and therefore used in bronchitis, asthma and epilepsy. MSc सेकेंड सेमेस्टर का पेपर 2 का बायोलॉजी एंड डाइवर्सिटी ऑफ जिम्नोस्पर्म में जो मैंने टेक्सस है वो आज ये टॉपिक पूरा मेरा कंप्लीट हुआ। आशा है आपको ये मेरा टॉपिक अच्छा लगा होगा। थैंक्स।